Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to your Elga class. I am your teacher Kalpana Chauhan. Students, as you know, we just completed our unit 2nd. In today's class, we will start our next unit, that is unit number 3, Science and Technology. So before starting this unit, just see this video. What is science? The moment we hear the word science, we tend to think of different types of machines, equipment, and laboratories. Does science means different type of machines, new inventions, and new ways of running industries? Or science related to different types of experiments and various inventions based on these experiments? Let us have a look at various things to understand more about science. These farmers are separating the grains from the chaff. They know that wind blows away the chaff, leaving the grains behind. They know that it will be difficult to separate the grains one by one, and therefore they use this method. This process works on the principle that the chaff is lighter than the grains, and therefore it gets lifted by the wind and gets removed. It is not scientific. How did they know about it? They knew about it through observations. Science is not only learnt in labs, but you and I can also observe the world around us and understand these processes. We can use it to build new technology, just like how this child has made a washing machine using a bicycle. Just like you can also make new machines by observing and learning from the world around you. Technology makes our work easier. Something that you can see around you, like a stapler, a screw, or even a sewing machine. They all are examples of technology. Observing the world around us, questioning and thinking creatively are important to learn science and to build new technology. Science is everywhere. So students, you see this video. Now what do you think science means? आपके according science क्या है? What is science? The word science means to know. साइंस का मतलब क्या है? किसी चीज को जानना. ठीक है? साइंस इज कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वर्ल्ड, कंडक्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंट. साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज का कलेक्शन होना हमारे पास. हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये भी साइंस है. कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, वो भी क्या है? साइंस है. राइट? We come up with facts and principles of science by conducting experiments, getting the same results again and again. देखो, हम किसी भी प्रिंसिपल और फैक्ट के ऊपर कैसे पहुंच पाते हैं साइंस के? दो मेथड्स हैं. लाइक फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, एंड सेकेंड वन इज गेटिंग द सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन, बार बार उन्हीं रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके. ओके? फॉर एग्जाम्पल, what happens when we throw a ball up into the air? क्या होगा अगर आप बॉल को ऊपर हवा में उछालोगे, ऊपर की तरफ फेंकोगे? What will happen? Just think about it. The ball comes down, as you can observe in the figure. जब आप ऊपर बॉल को डालते हो तो वो डेफिनेटली कहाँ पे आ जाती है? दोबारा से नीचे आ जाती है. राइट? Does it come down every time we throw it? बताओ.
क्या वो हमेशा आएगी? जब भी आप ऊपर फेंकोगे बॉल को, क्या वो हमेशा नीचे आएगी? यस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट ऑन योर ओन। आप चाहें तो घर पे भी इसको करके देख सकते हैं। हमेशा आपकी बॉल जो आपने ऊपर फेंकी है वो हमेशा कहाँ आएगी? नीचे आएगी, ठीक है। दिस इज हाउ वी कम अप विद द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बाय साइंस by conducting experiments, by getting the same results again and again. Okay, now what do you think technology means? अभी हमने साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना हम अपना न्यू यूनिट। तो साइंस के बारे में हमने पढ़ा, साइंस क्या होती है। अब आप बताओ टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी हम किसे कह सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। Technology is when we use science to create things that make our lives easier and help solve our problems. देखो टेक्नोलॉजी क्या होता है? जब हम साइंस को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बना दें जिससे हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो जाए, हमारी जो ज़िंदगी है आसान हो जाए और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो वो क्या हो गई? टेक्नोलॉजी। लाइक कंप्यूटर, हमें नॉलेज थी साइंस की, हमने कंप्यूटर बना दिया, राइट। अब कंप्यूटर से क्या हो गया? हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो गई। हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे हमारी लाइफ क्या हो गई है? और ज़्यादा ईजी हो गई है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो ये क्या है? ऑब्जर्व द फिगर, दिस इज अ फिगर ऑफ राइट अ लॉक, राइट। तो लॉक क्या है? टेक्नोलॉजी हो गई। इससे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोटेक्ट आवर हाउस, राइट। दिस इज अ लॉक। विच प्रॉब्लम डज इट सॉल्व? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है बताओ? अभी मैंने आपको बताया, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर होम्स गेटिंग रॉब्ड एंड थिंग्स स्टोलन। चोरी से बचाता है, हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हम अपने घर को बचा के रखें, तो हम इस लॉक को यूज़ करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ विच प्रॉब्लम डू दीज सॉल्व? अब देखो आपको जो ये फिगर्स दी गई हैं डिफरेंट लाइक अ पेंसिल, अ बॉटल, वाटर बॉटल, अ बैग, ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आते हैं? सोचो ज़रा। देखो इफ़ वी टॉक अबाउट अ पेंसिल, it helps to solve the problem of noting down things easily on paper. पेंसिल की मदद से हम लोग बहुत ईजिली कुछ भी चीज़ अपने नोट कर सकते हैं, राइट। बॉटल से हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पीने के लिए जो हमें पानी चाहिए उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बैग से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए हम अपने बैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये भी टेक्नोलॉजीज है, राइट। सो वी विल डू चैप्टर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सम ग्रामर वर्क। वी डू सम ग्रामर वर्क, राइट। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट possessive pronouns, right? First of all, just look at the figure. Whose puppy is this? किसका पपी है ये? This puppy is mine. ये पपी मेरा है, right? This puppy is yours. देखो यहाँ पे अगर जब जिसका पपी है वो बोलती है ये पपी मेरा है, लेकिन अगर दूसरा पर्सन है तो वो क्या बोलेगा? This puppy is yours. ये पपी तुम्हारा है, राइट। फिर दोबारा देखो क्वेश्चन पूछा जाए, हुज पपी इज दिस। अब वहाँ पे दो पर्सन्स आ गए हैं, पहले एक पर्सन के पास था पपी, अब दो पर्सन आ गए हैं वहाँ पे। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? दिस पपी इज योर्स। तो जो ये यहाँ पे लेडी है ये क्या बोलेगी? देखो पहले सिंगल थी ये लेडी, तो इसने आंसर दिया था दिस पपी इज माइन, ओके। फिर जब दो लेडीज हो गई, ये वाली और ये वाली, तो इसने क्या बोला था? दिस पपी इज योर्स, ठीक है। यहाँ पे अब तीन हो गई, तब भी वो क्या बोल रही है? दिस पपी इज योर्स, राइट। अब देखो अब क्या होता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हुज पपी इज दिस। अब क्या होता है, उस लेडीज़ के पास जिसका पपी था वो अब सिंगल है, लेकिन यहाँ पर इस लेडीज़ के पास जो बता रही थी उसके पास एक पर्सन आ गया है, ठीक है।
सपोज ये इसका क्या है, सन है, तो वो अपने बेटे को बता रही है। तो वो कैसे बताएगी अपने बेटे को, दिस पपी इज हर्स, कि ये पपी इस लेडीज का है। ठीक है, तो उसने कैसे बताया, दिस पपी इज हर्स। नाउ फिर एक और क्वेश्चन आता है दोबारा से, हुज पपी इज दिस। अब क्या केस हुआ, अब देखो यहाँ पे, अब ये लेडीज, अगर कंडीशन चेंज हो गई है, अब यहाँ पे ये लेडी है, ये इसकी फ्रेंड है, राइट, ये एक आदमी है, पर्सन है। ठीक है, अब इसके पास आ गया ये पपी, तो अब ये क्या आंसर देगी, दिस पपी इज हिज, क्योंकि ये मेल है, राइट। तो मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिज। फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, हर, राइट। तो अब ये इस पर्सन का है, इस मेल का है ये पपी, तो वो लेडीज़ क्या बोलेगी, दिस पपी इज हिज, ये पपी उसका है, राइट। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ रहा है, दिस पपी इज आर्स। अगर वो कहना चाह रहे हैं कि ये पपी हम सब का है, तो सब लोग इसमें अगेन क्वेश्चन अराइजेस, हुज पपी इज दिस। अब देखो नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होगा कि इन सब के पास पपी है, इनका पपी है ये, ठीक है। अब कोई और पर्सन बताना चाह रहा है कि उनका पपी है, तो वो कैसे बोलेगा, दिस पपी इज देयर्स, ये उनका पपी है, राइट। नाउ यू विल सी अ पिक्चर ऑफ अ रूम, देयर आर मैनी थिंग्स देयर, आंसर हुज थिंग्स दोज आर। अब देखो एक पिक्चर है रूम की, उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा रूम है, मेरे रूम में अलमीरा है, टीवी है, राइट, एक कबर्ड है, और एक मेरे पास बुक्स है। तो उसमें अगर हम पूछना चाहें ये बुक किसकी है, ये कबर्ड किसका है, ये अलमीरा किसकी है, तो हम उसमें आंसर्स देंगे ना कि ये अलमीरा मेरी सिस्टर की है, ये कबर्ड मेरे ब्रदर का है, राइट। तो हम ऐसे आंसर्स दे सकते हैं। अब देखो आगे देखो, ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, पराक्ष है, ज़ारा है, नवेद है, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, क्लासरूम की पिक्चर है यहाँ पर। तो देखो आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हुज बुक्स आर दीज। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको मेंशन कर दिया, एक सर्कल दे दिया इस बुक्स का, ठीक है। तो वो इसके बारे में पूछ रहा है कि हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं, हिज और हर्स। एज यू नो वी यूज हिज फॉर मेल और अ बॉय, राइट, और अ मैन, एंड हर्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेडी के लिए, ठीक है, गर्ल के लिए, ओके। तो हम इनके लिए हिज मेल के लिए यूज़ करते हैं और हर्स फीमेल के लिए। तो अब यहाँ पे वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हुज बुक्स आर दिस, ये किसकी बुक्स हैं ये वाली। तो आपको क्या दिख रहा है, किसकी बुक्स हैं ये, ज़ारा की बुक है या ये पराक्ष की बुक है। यस, दिस बुक्स आर हिज मतलब पराक्ष की बुक्स हैं यहाँ पे ये, ठीक है। किसकी बुक्स हैं ये, पराक्ष की। नाउ हुज इरेजर इज दिस। अब यहाँ पे देखो आपको इरेजर पे सर्कल लगा दिया। अब ये इरेजर किसकी है, हिज और हर, नवेद की या ज़ारा की। हर यूज़ किया गया है ज़ारा के लिए, हिज यूज़ किया गया है नवेद के लिए। तो किसकी इरेजर है ये, राइट, हर्स। हर्स मतलब फॉर ज़ारा, राइट। दिस इरेजर इज हर्स, हर्स किसके लिए, ज़ारा के लिए यूज़ किया है। दिस पपी इज आर्स, शेयर योर आंसर, विच वर्ड शोज अस हुज द पपी बिलोंग्स टू। अब देखो कौन सा ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में, जो ये सेंटेंस बोला गया है, दिस पपी इज आर्स, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि ये पपी इन लोगों का है, इन सब का है ये पपी। कौन सा वर्ड है, यस, वर्ड कौन सा है, आर्स। क्योंकि क्या हुआ इस सेंटेंस का मीनिंग, दिस पपी इज आर्स, ये पपी हमारा है। आर्स, आर्स मतलब हमारा, और ये सब एक दूसरे को बोल रहे हैं ये पपी हमारा है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड यूज हुआ हमारा यहाँ पे, आर्स। द वर्ड आर्स शोज अस हु द पपी बिलोंग्स टू, राइट। सो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, these are a type of personal pronouns that refers to something that is owned by the speaker or by someone who has been previously mentioned। देखो possessive pronoun कौन से होते हैं, वो वाली चीज़ें, ठीक है, जो किसकी होती है, स्पीकर की, जिसके बारे में स्पीकर बता रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ अभी कोई चीज़ के, मेरे पास एक टैबलेट है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो वो क्या हो गया, पोजेसिव
प्रोनाउंस हो गए। टैबलेट, टैबलेट किसका है? मेरा, ठीक है। और देखो, और अगर आप क्वेश्चन करोगे कि हुज किसका है, तो आपको उसका आंसर मिले तो वही क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है। देखो जैसे दिस पपी इज माइन, अगर हम देखो आंसर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है दिस पपी इज माइन, ये पपी मेरा है। तो अगर आप क्वेश्चन पुट अप करोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? हुज पपी इज दिस, किसका पपी है ये? तो आंसर क्या मिला? दिस पपी इज माइन, तो ये पपी मेरा है। तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हो गए? माइन। दिस पपी इज हर्स, ये पपी उसका है, तो किसका हो गया? हर्स, उसका। तो यहाँ पे कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया? हर्स। आर्स, दिस पपी इज आर्स, ये पपी हमारा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली कि आपका क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है किससे? हुज से, और अगर हुज का आंसर जो होगा वही आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा। देखो हम समझते हैं इसे इससे, देखो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है दिस पपी इज योर्स, ये पपी तुम्हारा है, राइट। तो अगर हम इस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हुज पपी इज दिस, ये पपी किसका है? तो इसका आंसर हमें क्या मिला? ये पपी हमारा, तुम्हारा है ना, योर्स। तो योर्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउंस। दिस पपी इज हिज, ये पपी उसका है, तो आंसर क्या मिला? उसका है। तो कौन सा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे? हिज। ओके, दिस पपी इज देयर्स, तो देयर्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउंस। सो आपको कंसेप्ट क्लियर है पोजेसिव प्रोनाउंस का? तो देखो अब हम अपना ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। व्हाट आर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स? इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स क्या होते हैं? An informational article informs the reader about a given topic by explaining and giving details. तो जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं वो वाले आर्टिकल्स होते हैं जो रीडर को क्या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बताते हैं। उस आर्टिकल के अंदर डिटेल में बताया होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। देखो हमने हेडिंग दे दी बाईसाइकिल्स। फिर आपका सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट में आपके बॉडी पार्ट था ना, बॉडी लिखनी है कि उसमें आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो साइकिल से, बाईसाइकिल से रिलेटेड, तो वो आपने सारा इसमें लिखना है और लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है। देखो जैसे कि डिटेल्स हमारे पास कौन कौन सी आ गई यहाँ पर? बाईसाइकिल्स हैव गोन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंज। बाईसाइकिल्स पहले कैसी होती थी, अब चेंज हो गई हैं थोड़ी। फर्स्ट बाईसाइकिल क्या थी, क्या नाम दिया गया था उसको? रनिंग मशीन। किसने बनाई थी वो? वाई कार्ल ड्रेन्स। कब बनाई थी? 1800s में। सेकंड बाईसाइकिल पैडल वाली आई थी, अटैच टू द टॉल फ्रंट व्हील। थर्ड बाईसाइकिल किसने बनाई थी? जॉन स्ट्रेली ने, है ना, और उसमें दो व्हील्स, दो आपके टायर्स यूज़ होने लगे थे सेम साइज़ के, ठीक है। तो ये हमने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बाईसाइकिल से रिलेटेड वो हमने बॉडी पार्ट में लिख दी, है ना, कि कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, कहाँ पर बनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बॉडी में देना है। फिर लास्ट में आपका कौन सा पार्ट आता है? कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन पार्ट में देखो, कंक्लूजन पार्ट में फिर हमने क्या लिख दिया? देखो टुडेज बाईसाइकिल आर इम्प्रूवमेंट ऑन जॉन स्टार्लेस डिज़ाइन। जो जॉन स्टार्लेस की डिज़ाइन थी उसके ऊपर ही आगे हमारी जो आजकल की साइकिलें हैं वो बनती आ रही हैं। द डिज़ाइन इज़ कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्ड, और डे बाय डे जो डिज़ाइन है बाईसाइकिल्स का वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हमने क्या दे दिया? कंक्लूजन दे दिया, राइट। तो इस तरीके से हम अपना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो ये आपने जो भी ये जितने भी स्लाइड का है ये आपने लिखना है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है, ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। फिर आपकी जो ये नेक्स्ट स्लाइड है आपने इसको भी ड्रॉ करना है, ये भी लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है आपने ये भी लिखना है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।